So, hi everyone, today we're going to be solving chemistry, paper 4 ATP, October November 2021, paper 41. Okay, so the threshold for this paper was an A on 36 on 60. Okay, so I believe that this paper might be a bit difficult, and I tried to find a difficult paper to solve. Um, and the threshold is low, that means it's going to be difficult and A on 36. That's why I ask you guys not to pray for low threshold, because otherwise the paper is way too difficult and you're unable to solve it. So it's good that you guys never pray for a low threshold. Otherwise you won't able to solve the paper in the exam hall. Okay, let's get started with question number 1, which says that a student uses the apparatus to make ethanoic acid from ethanol. Okay, that's simple. You have ethanol, you oxidize it. Okay, oxidize mean you add oxygen to it, and you get ethanoic acid. Okay, that's a simple reaction. Okay, even if you guys have prepared for paper 2 as well, you should have known that by oxidizing ethanol, you get ethanoic acid. Okay, over here you have ethanol, and you have acidified aqueous potassium manganate VII. So now this thing right over here, this is the oxidizing agent that we're using with ethanol uh, to oxidize it, to convert it to ethanoic acid. Okay, even this was a question in paper 2 as well, I guess in O-levels chemistry, that you had to make vinegar out of ethanol. So that was also the oxidation of ethanol. Okay, vinegar is basically ethanoic acid. Okay, and if you have ethanol, you can oxidize it to make ethanoic acid, and your ethanoic acid is your vinegar. Moving on, name apparatus A and B. Okay, so apparatus A is basically your this thing. Okay, this thing is used to condense your liquid. Okay, basically what happens is, because you're heating it, vapors will go up like this in this thin narrow glass tube, and because of this water in and water out, because there's a flow of water right here, these vapors that are moving up will condense from gas back into liquid, and droplets of water will fall back, not fell back, into this round bottom flask. Okay, so this is a condenser whose job is to condense the liquid, to condense gas back into liquid. That is what a condenser is made to do. So we are going to write apparatus A is a condenser. But there's one thing over here that in the marking schemes you're going to find that they don't call this thing a condenser, they call it a Liebig condenser. Okay, now this name might seem a bit intimidating, but don't be intimidated by the name. Liebig is simply the name of the scientist who basically invented this condenser. Okay, not invented this, kind of discovered this or whatever. So Liebig was the name of the scientist, and condenser, you know what it is. So in the marking schemes, I checked 2-3 marking schemes, and in that the name was not condenser, it was Liebig condenser. Okay, Liebig, you can simply break this name down into two parts. Lie, that means to lie, and big means something that's grandiose and big. So Liebig condenser, and Liebig is the name of the scientist who worked for experimental chemistry and basically was the pioneer of this condenser. Okay, and this one, if you're good to go with your apparatus, you should know this one's a round bottom flask. Why a round bottom flask? देखें, this one right here is a conical flask. देखें, now one thing you can see in a conical flask is the cone shape. Look over here, you can see a cone kind of a shape. If you just extend it, you're gonna find a cone. So that's why it's called a conical flask. This is a round bottom flask because you see a round over here. देखें, it's always good if you make mnemonics in your brain and learn things by their shapes. I guess that's more that's more encouraging, and that is what stays in your brain rather than just cramming out things and learning them. ठीक है, और इसको आप अर्लिन मेयर फ्लास्क भी बोलते हो या अर्लिन मायर. ठीक है, और ये आपका, लेकिन इन ब्रिटिश इंग्लिश आप इसको कॉनिकली बोलते हो, दैट्स फॉर अमेरिकन इंग्लिश. तो ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है, इसको एक्सटेंड कर दें, कोन बन जाती है, दैट्स वाई इट्स कॉनिकल. ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है क्योंकि ये राउंड है. ठीक है, इसी तरह आपके एक दो और फ्लास्क आते हैं, आपके बीकर आ जाता है. लर्न बीकर बाय दिस कि उसके यहाँ पे एक छोटी सी बीक होती है. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बीकर की एक बीक होती है, so that's why it's called a beaker. ठीक है, इस तरह just make mnemonics and learn.
So this one's gonna be a round bottom flask. You cannot write flask, ठीक है? Flask सारे होते हैं, ये भी flask है. Don't do this. Round bottomed flask. That's gonna get, these two things are gonna get you your 2 marks. Moving on. Identify 2 errors in the assembled apparatus shown in the diagram. Okay. अब यहाँ पे सबसे बड़ा एरर जो बट आई कैन सी राइट अवे इज, देखें जब यहाँ से वेपर्स जाएंगे, ठीक है, वेपर्स आर गोइंग अप. Over here in this entire apparatus, the vapors, because this is sealed from the top, the vapors are basically going to create a pressure difference. ठीक है, यहाँ पे आपका high pressure area बन जाएगा inside because vapors यहाँ से निकल नहीं रहे. और क्योंकि ये सारा apparatus glass का है, ठीक है, this is a glass apparatus you're working with, condenser भी glass का है, आपका flask भी आपके glass से बना हुआ है, ठीक है, majority times it's from glass. तो क्या होएगा कि आपका लो अंदर जो है वो आपका हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा. देखें वेपर्स है, हॉट स्टीम है, आपको पता है जब आप किसी को हीट करते हैं तो द प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ सील्ड, वेपर्स गो अप एंड देयर इज़ अ हाई प्रेशर इनसाइड. तो देयर आर चांसेस दैट योर फ्लास्क along with the condenser can explode, ठीक है, it can explode because of the pressure difference, क्योंकि यहाँ पे आपने seal किया हुआ है, ठीक है. That's why they say that, in the kitchen whenever you have a pressure cooker and something's cooking inside, you should not go because that's dangerous, क्योंकि pressure cooker तो फिर metallic होता है, वो तो फिर withstand कर सकता है high pressure, ठीक है, क्योंकि वो सील्ड होता है. प्रेशर कुकर में अगर आपको पता हो तो वो अंदर से सील्ड होता है ताकि अंदर से हाई प्रेशर क्रिएट किया जा सके, एंड दैट्स डेंजरस, ठीक है. इट कैन एक्सप्लोड एज वेल. सिमिलरली अगर आप अपने फ्लास्क को सील कर देंगे और उसको हीट करते रहेंगे तो उसमें हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो तो ग्लास का है, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस टू हाई प्रेशर, इट कैन एक्सप्लोड, ठीक है. सो दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस. सो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ दिस सील, इट शुड नॉट बी सील्ड. So the error can be that it should not be sealed or a bung should not be used and should not be used. Asha, now the next error some of you might think, ठीक है, it can be a thought in your mind that कि देखें कंडेंसर तो स्ट्रेट वर्टिकली लगा हुआ है, कंडेंसर तो हमने हमेशा सुना था स्लोपिंग वे में लगा होता था. देखें अगर आप इस क्वेश्चन को आगे रीड करें, फर्दर रीड करें, तो दिस इज़ अ वे, अगर कंडेंसर आपका स्ट्रेट लगे बिल्कुल इस तरह वर्टिकली, तो डोंट थिंक कि ये रॉन्ग है. इट इज़ नॉट ए रॉन्ग एपरेटस, दिस इज़ अ वे टू प्रोवाइड रिफ्लेक्स हीट, ठीक है, इसको रिफ्लक्स हीट आप बोलते हैं, ठीक है, इसलिए आप कंडेंसर को स्ट्रेट लगाते हैं. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन द apparatus. द प्रॉब्लम इज़ वाटर इन एंड वाटर आउट. देखें अगर यहाँ से वाटर इन होगा ना, तो बिफोर द कंडेंसर गेट्स फिल्ड टू द टॉप, पहले आपका यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा, ठीक है. अब ये 3 डायमेंशनल है ना, सो बेसिकली यहाँ से वाटर इन होगा, यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा. तो बिफोर द कंडेंसर कुड रीच, वाटर कुड रीच द टॉप, your water in this water jacket is gonna be empty. So ये गलत है. water in यहाँ से होएगा तो फिर ये टॉप तक फिल होएगा और बॉटम से भी सारा फिल होएगा और फिर आपका वाटर आउट होगा, ठीक है. सो इफ़ यू ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग इन योर ब्रेन, अगर ऊपर से पानी आ रहा है तो वो नीचे फ़ौरन चला जाएगा, पर अगर नीचे से पानी आ रहा है तो वो जब तक फुल ऊपर नहीं रीच होएगा स्लोली, तब तक वो आउट नहीं होएगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू रियलाइज. सो you have to write water in and water out are wrong way round, ठीक है, or reversed you can say, or you can say wrong way round. So that needs to be fixed. Moving on. The errors are corrected and the experiment is started. ठीक है, now you have removed the bung, you have collected the water in and water out. State why apparatus B is not heated directly using flame of a Bunsen burner. Oh, that's a good question. Look, what do you have in apparatus B? Always remember कि ethanol हो, आपके कोई भी पेट्रोलियम के गुड्स हों, जैसे alkanes हों, alkenes हों, you have octane, nonane, decane, methane, ethane,
ठीक है, all these guys they're really flammable. आपके organic compounds, ठीक है, आपके alcohols, आपके alkanes, आपके alkenes, they're all very flammable. You have ethanol in the Bunsen burn, in the round bottom flask, and ethanol is highly flammable, ठीक है. So that's why you cannot heat it directly. You never heat ethanol directly. Even if you have any open flames in your laboratory while working with ethanol, you got to make sure you got to close them, because ethanol is highly flammable. So you use a water bath. Moving on, name a piece of apparatus that is used for heating without a flame. ठीक है, it can be an electric heater, ठीक है, and it can be a water bath, but the problem is that in a water bath, heating without a flame, you still have a flame in a water bath, ठीक है. Water bath क्या होता है? Water bath is you have this trough of water. Underneath, in this trough of water, you have your flask and all the things, and underneath you're providing heat. But still, in a water bath as well, you have a heat source, ठीक है. आपके पास फ्लेम होता है वाटर बाथ में भी. सो हीटिंग विदाउट अ फ्लेम, क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है, ठीक है. दैट्स द बिगेस्ट टिप आई कैन गिव यू गाइस. तो विदाउट अ फ्लेम हमारे पास होगा हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर में फ्लेम होता ही नहीं है. So that was what you had to look for. Moving on, heating with apparatus A in the vertical position is called heating under reflux. That was what I was talking about. देखें, आपका जो कंडेंसर है, apparatus A का मतलब है कंडेंसर, अब आपका वर्टिकल पोजिशन में है. सो दैट्स हीटिंग अंडर रिफ्लक्स. ये देखें, आपका कंडेंसर इंस्टेड के वो लिक्विड आपका कंडेंस होके, वेपर आपका कंडेंस होए लिक्विड में और बाहर जाए, वो वेपर वापस नीचे ही गिर जाएगा, है ना, बिकॉज ये तो कंडेंसर तो वर्टिकल पोजीशन में है. दैट मीन्स आपका वेपर, पहले आप वेपर बनाएंगे, वेपर यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर वहीं से ही ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है. सो दैट्स व्हाट दिस apparatus is telling us. So moving on, describe what happens after the vapors from apparatus B enter apparatus A. देखिए, apparatus B आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, apparatus A आपका कंडेंसर है. तो सबसे पहले तो what happens after vapors from apparatus B enter apparatus A? Vapors get condensed and turn into liquid. So we have 2 marks, so we have to give them 2 points. अगर 3 points हैं तो 3 दे दें. जितने maximum points आप दे सकते हैं, try to give them, ठीक है, because you guys haven't read the marking schemes, you don't know what's in there, you have to give whatever you know, ठीक है. So what happens to vapors? Vapors get condensed. अच्छा, मार्किंग स्कीम्स में एग्जामिनर डज नॉट लाइक अगर आप कंडेंसर का फंक्शन लिखेंगे इट कंडेंसेस, बिकॉज वो उसके नाम से पता चल रहा है कि इट्स अ कंडेंसर, इट हैज़ टू कंडेंस. यू हैव टू राइट दैट इट टर्न्स अ गैस इनटू अ वेपर. सो वेपर्स गेट कंडेंस्ड, मीनिंग, you know, just clarify whatever you're saying. They turn into liquid, and what's special about this kind of liquid? देखिए, हर डिस्टिलेशन में आपके पास क्या हो रहा होता है कि आपका कंडेंसर कंडेंस करता है, आपके पास लिक्विड होता है. बट व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस इज़ कि जो आपका लिक्विड है ना, वो फॉल बैक करे जहाँ से वो आया था. अगर हम इसको नॉर्मल कंडेंसर की तरह ट्रीट करें तो हमें पता था कि हमारा यहाँ से एक फ्लास्क होता था, कॉनिकल फ्लास्क, जिसको हम अपना रिसीवर बोलते थे, और उसमें हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स या जो भी हमारा एथेनॉल होता था, जो भी चीज़ थी वो गिरती थी. बट इसके बारे में स्पेशल ये है कि यहाँ से वापस जो है वो लिक्विड नीचे आएगा अपने ओरिजिन या उसका जो सोर्स है जहाँ से वो फर्स्ट हैंड ऊपर आया था, वहीं पे ही वो वापस चला जाएगा. सो वी राइट दैट लिक्विड फॉल्स बैक, आइदर यू कैन से इनटू apparatus B क्योंकि वो राउंड बॉटम फ्लास्क है, या इनटू द round bottomed flask. Okay, moving on. A student investigates the reaction between calcium carbonate and HCl. Okay, what kind of question is this? Let's first see. This is going to be a kind of, I guess, general test kind of reaction. Qualitative analysis होएगा और एक दो ऐसी चीज़ें होंगी. Okay, let's get started. A student investigates the reaction between calcium carbonate and HCl. The equation for the reaction is shown.
ठीक है, सिंपल है, कार्बोनेट है, एसिड है. You should know the products by now after giving a theory exam that you're going to have a salt, carbon dioxide and water. ठीक है, student observes bubbles of a gas being produced. Okay, what kind of gas is this? Even if you guys don't know, that's going to be carbon dioxide gas. Okay, when calcium carbonate is added to hydrochloric acid, what kind of salt? Calcium chloride and water. The student does a test to show the gas is carbon dioxide. Give a test and observation to identify carbon dioxide gas. अच्छा, अब तो आपको टेस्ट याद करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज ATP के लिए, बिकॉज यू गोना बी गिवन विद द टेस्ट. ठीक है, आपके एंड पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे. सो टेस्ट इज़ गोना बी बबल द गैस थ्रू लाइम वाटर. बबल द गैस, ठीक है, एग्जैक्टली नीचे से कॉपी कर लेना. ठीक है, नीचे लिखा होता है through lime water, and observation is going to be that your lime water turns milky. ठीक है, state one other observation. ठीक है, the student makes when calcium carbonate is added to HCl. अच्छा, अब देखें, now the thing over here is you need to imagine is the reaction taking place. Imagine that you add a piece of calcium carbonate insoluble होता है, तो obviously आप इसका एक solid piece लेंगे और वही डालेंगे ना. तो imagine you are adding a piece of calcium carbonate into an acid and you see bubbles. What other thing are you guys are going to see? देखें, I always encourage that you don't learn the observations. You try to imagine it in your brain. ठीक है, you try to imagine it in your brain. एक solid piece डाल रहे हैं, solid react कर रहे हैं, तो क्या वो solid disappear नहीं होएगा थोड़ी देर के बाद? ऑब्वियसली वो जो सॉलिड रिएक्ट हो जाएगा तो उसका मास जो है, उसका साइज़ है, डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वो रिएक्ट कर गया नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ताकि कैल्शियम क्लोराइड बन जाए. तो सॉलिड जो होएगा वो डिसअपेयर हो जाएगा. ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन इट व्हाट्स हैपनिंग. यू हैव एडेड अ पीस ऑफ सॉलिड, यू सी बबल्स. आप इसको ऐसे इमेजिन कर लें, इफ़ यू गाइज हैव एवर कंज्यूम दैट टैबलेट, दैट CAC-1001 that's used to provide calcium to your bones. Have you ever used it? जो ऑरेंज कलर की होती है, इट हैज़ अ टेस्ट लाइक अ फांटा आई गेस. तो अगर आप वो डालें वाटर में तो व्हाट यू गाइस सी? यू सी बबल्स. ठीक है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड व्हाट एल्स डू यू सी दैट योर CAC-1000 इट डिजॉल्व्स इन वाटर. ठीक है, ऑरेंज कलर की होती है टैबलेट्स दैट यू यूज़ फॉर कैल्शियम. ठीक है, तो अदर ऑब्जर्वेशन इज़ गोना बी दैट सॉलिड. ठीक है, ऑब्जर्वेशन में आप ये नहीं लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट या कुछ और किसी केमिकल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल सॉलिड लिक्विड गैस की टर्म्स में बात करेंगे. ऑब्जर्वेशन में हमेशा वो चीज़ बतानी है जो आपको नज़र आ रही है. ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बताना, कुछ नहीं बताना. ठीक है, सॉलिड डिज़ोल्व्स और डिसअपेयर्स. ठीक है, सो दैट्स गोना बी it. Moving on, the student does an experiment to find out how the rate of the reaction changes as the concentration of HCl changes. अच्छा, अब स्टूडेंट ने ये रिएक्शन किया है और अब उसका ऑब्वियसली अलग हाइपोथेसिस होएगा रिएक्शन का. बट बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन, before starting it, we know that from our theory, we guys know, we have learned it, that the changes in concentration are linked with the rate, and we have studied it that as the concentration increases, the rate increases. ठीक है, we don't kind of need to do an experiment in order to prove. We already know this. ठीक है, पर फिर भी experiment करते हैं. हमें पता है concentration increase होगी एसिड की तो हमारा जो है वो rate increase होगा. क्यों? Because particles are going to be closer together and there are going to be more particles per unit area, hence the frequency of effective collision is going to increase and the rate is also going to increase. Okay, method, the student measures 100 cm cube or 1 mole per dm cube HCl hydrochloric acid and pours this into a beaker. ठीक है, important stuff, always highlight because फिर वापस आना मुश्किल होता है to read all back again, so you just highlight whatever you find important. Okay, we're given with the volume, with the concentration of HCl. We know that it's an excess, so what's going to be the limiting reactant? The other thing adds a known mass. ठीक है, known mass है of calcium carbonate, मतलब HCl उसने randomly excess में डाल दिया, लेकिन calcium carbonate को उसने weigh किया पहले. So that's going to be our limiting reactant. Some of you might never
टेक इन टू नोटिस व्हाट्स इन एक्सेस, व्हाट्स इन लिमिटिंग रिएक्टेंट. एक बात हमेशा याद रखना, द अमाउंट ऑफ योर लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ योर प्रोडक्ट. तो अगर आप इस चीज़ को अकाउंट में नहीं रखते ना कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और आपका एक्सेस क्या है, तो एक बात याद रखना, आप कभी भी डिटर्मिन नहीं कर सकते कि किस चीज़ के मोल्स आपके प्रोडक्ट के मोल्स को इफ़ेक्ट करेंगे. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ मज़े की. ये है ना हमारे पास रिएक्शन. इस रिएक्शन में अक्सर आप लोग ना देखते नहीं हैं क्या चीज़ एक्सेस में और क्या नहीं. देखें यहाँ पे 2 मोल्स है ना HCl के. दिस थिंग माइट बी बिट इंटिमिडेटिंग बट यू गाइज शुड नो दिस. देखें अगर ये एक्सेस में है ना और मैं एक और मोल डाल देती हूँ HCl का, मैं 3 मोल्स कर देती हूँ, फिर मैं एक और मोल डाल देती हूँ, मैं 4 मोल्स कर देती हूँ, मैं इसके जितने मर्ज़ी मोल्स इंक्रीज़ कर दूँ, बिकॉज़ ये एक्सेस में है मेरे प्रोडक्ट के मोल्स चेंज नहीं होंगे. अगर मैं इसके 1 मिलियन मोल्स भी कर देती ना, 1 2 3 4 5 6, तब भी मेरे पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मोल वाटर का ही बनेगा. अगर मैं इसके 1 ट्रिलियन मोल्स भी कर देती हूँ ना, तब भी सिर्फ इतना बनेगा. क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में है. हमेशा याद रखना, जो चीज़ एक्सेस में होती है उससे हमारा प्रोडक्ट डिटर्मिन नहीं होता, क्योंकि इसका 1 मोल है और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है. लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटर्मिन करता है कितना प्रोडक्ट बनता है. अब आप देख लें, अगर आपने बर्गर बनाना है, ठीक है, इफ़ यू हैव टू मेक अ बर्गर, यू नीड अ बर्गर पैटी फॉर दैट. ठीक है, अगर आपके पास 2 बर्गर पैटीज़ हैं तो आपके पास 2 ही बर्गर्स बनेंगे. दो आपके पास 1 मिलियन बर्गर बन्स हुए, आपके पास 1 मिलियन बर्गर्स नहीं बन सकते. क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपके पास जो बर्गर पैटीज़ हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटर्मिन करता है कितना प्रोडक्ट आता है, कितने बर्गर्स बनते हैं. डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ योर बर्गर पैटीज़, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ योर बन्स, बिकॉज बन्स आर इन एक्सेस. इसी तरह HCl एक्सेस में है, उसका अमाउंट नहीं डिटर्मिन करता प्रोडक्ट का अमाउंट. ठीक है, दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट टू नो. मूविंग ऑन. अच्छा, immediately starts the clock. ठीक है, stops the clock when all the calcium carbonate has reacted, records the time. The student repeats the experiment several times with different concentrations of HCl. ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस में है तो प्रोडक्ट डिटर्मिन नहीं होएगा, बट क्या होएगा, रेट को फास्टर करेगा. अब ये मत सोचना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से एक्सेस वाली चीज़ जो है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो रेट नहीं ज़्यादा होता. रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, अगर मैं इसके ज़्यादा मोल्स कर दूँगी तो रेट ज़्यादा हो जाएगा रिएक्शन का, रिएक्शन फास्टर रहेगा, बट प्रोडक्ट उतना ही बनेगा. ठीक है, डोंट मिक्स इट. रेट इंक्रीजेस बट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट इंक्रीज. ठीक है, ओके. The student, the concentration of HCl for each experiment is changed by changing the volume of 1 mole per dm cube HCl. ठीक है, water is added to make the total volume equal in each experiment. All other variables likely to affect the rate of the reaction are kept constant in each experiment. ठीक है, सिंपल देखें, अगर आप उसे डाइल्यूट कर देंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. सो आप सिंपल उसके वॉल्यूम को, फिक्स वॉल्यूम है, आप बस उसमें वाटर डाल रहे हैं और उसको डाइल्यूट करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम या ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. द रिज़ल्ट्स आर शोन इन द टेबल. ठीक है, सिंपल रिज़ल्ट्स हैं. आपने टोटल वॉल्यूम जो है ना उसको कांस्टेंट रखना है. ठीक है, ओके, लेट्स सी. हमारे पास स्टार्टिंग में वॉल्यूम था इतना, तो हमें इस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, 100 cm³ वाले वॉल्यूम को. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास 100 ही है और यहाँ पे 0 वाटर है क्योंकि हमें 100 चाहिए. अब यहाँ पे हमारे पास 20 है, हमें 100 पूरा करना है. ठीक है, HCl और वाटर को मिला के हमें 100 को पूरा करना है. तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 20 + 80 = 100. और आखिरी वाले में हमारे पास 20 है, हम कितना वाटर लेंगे, हमने 100 को पूरा करना है. सो 20 + 80 = 100. ओके, complete the table. We've done it. State which experiment has an anomalous reaction time. Asha, now you have to figure out which reaction has an anomalous reaction time. For that you have to figure out the difference. आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, पैटर्न जनरल पैटर्न है कि पहले 30 है और मेरा एंड पे 170. So what I see is that my pattern is kind of increasing. ठीक है, मेरा रिएक्शन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, अब नाउ आई गो टू इंडिविजुअल रीडिंग एंड ट्राई टू फिगर इट आउट. देखें, 30 से 150 एक इंक्रीज़ है, बट 150 से 120
एक डिक्रीज़ है. सो शुडंट दिस बी काइंड ऑफ समथिंग एनॉमलस. और फिर 120 से 140 फिर इंक्रीज़ है, और 140 से 170 फिर इंक्रीज़ है. तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? इस जगह पे. मतलब यहाँ पे कुछ एनॉमलस रिजल्ट्स हैं जिसकी वजह से ये एक DEC आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो INC इंक्रीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे क्यों डिक्रीज़ आ रहा है? तो दे मस्ट बी समथिंग एनॉमलस. लेट्स फिगर इट आउट. अब इन दोनों में से कौन सा एनॉमलस है, 150 या 120? विच वन if anyone can decide? It's very easy. Just look at the values. देखें, अगर आप 150 लेते हैं अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल 150 लेते हैं, तो इमेजिन करें 120 आपने कहा एनॉमलस है, यहाँ से आपने काट दिया, ठीक है. बट फिर क्या होएगा? 150 से 140 डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है? 10 का डिक्रीज़ है, फिर से डिक्रीज़ हो गया. हम तो इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ जा रहे थे, फिर डिक्रीज़ हो गया. बट अगर अब आप 150 को एनॉमलस लेते हैं, एनॉमलस रीडिंग को आप इंक्लूड नहीं करते, तो होगा क्या? ये आ गया आपका इंक्रीज़, 120 से 140 फिर इंक्रीज़, और 140 से 170 फिर इंक्रीज़. तो मतलब आपका एनॉमलस रीडिंग 120 नहीं थी, वो 150 थी. 150 से आपका ट्रेंड डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है. समझ आई? सो दैट मीन्स कि आपका एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो एनॉमलस है. सो यू राइट 2 ओवर हियर. Suggest what the student should do to check if the reaction time in CI is anomalous. हमेशा anomalous results को figure out करने का, you might see this word anomalous a lot in ATPs, ठीक है, either it be physics, chemistry or biology. Anomalous results हमेशा उसको check करने का एक ही तरीका होता है, to repeat the experiment, ठीक है. Repeat the experiment. इससे आपकी anomalous reading जो होती है ना वो identify हो जाती है. Repeat the experiment. और अच्छी होता है कि अगर आप उसको बार बार रिपीट करके मीन या एवरेज ले लें, ठीक है. दैट्स गोना फिक्स योर एनॉमलस रीडिंग. आपको पता चल जाएगा कि सब में वही रीडिंग आ रही है, यहाँ पे इसमें थोड़ी डिफरेंट थी. स्टेट विच एक्सपेरिमेंट हैज़ दिस स्मॉलेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन. ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. इधर देखें, रेट होता है, देखें, रेट इज़ इक्वल्स टू समथिंग दैट्स चेंजिंग, ठीक है, ओवर योर टाइम, ठीक है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही आपका रेट होता है, ठीक है. समथिंग दैट्स चेंजिंग ओवर योर टाइम. अच्छा, ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला नहीं मैंने स्टेट किया, ये सिंपल एक जनरल वो है, ठीक है. आपको एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता कोई रेट का. रेट होता है एक चीज़ जो चेंज हो रही हो पर यूनिट टाइम, ठीक है. उसके चेंज का वो क्या है, टाइम क्या है. सो हमें चाहिए स्मॉलेस्ट रेट. ठीक है, अगर आप इस फार्मूला को काइंड ऑफ मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, सो लुक, यू नीड द स्मॉलेस्ट रेट, अगर आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, तो अगर आपको रेट थोड़ा चाहिए, तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी हुई है तो आपको पता है अगर इसकी लोअर बाउंड चाहिए तो डिनोमिनेटर की अपर बाउंड होएगी, है ना. ये मैथ्स में हमने पढ़ा है ना इन आवर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी चैप्टर. अगर रेट की लोअर बाउंड चाहिए, अगर इस नंबर की लोअर बाउंड चाहिए, तो अगर एक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर की अपर बाउंड चाहिए. तो सबसे ज़्यादा टाइम किस रिएक्शन में लग रहा है, वो वाला रिएक्शन का लोएस्ट रेट होएगा. सो आई गेस दैट्स रिएक्शन 5 विद अ रिएक्शन टाइम ऑफ 170 सेकेंड्स. सो दैट्स एक्सपेरिमेंट 5, ठीक है. आई होप यू गॉट दिस थिंग, ठीक है. और अगर वो हाईएस्ट रेट पूछते, हाईएस्ट रेट, तो आप इसको बस इन्वर्स कर देते. हाईएस्ट रेट वुड मीन कि देखें, इसकी अगर अपर बाउंड चाहिए तो डिनोमिनेटर की फिर आप लोअर बाउंड लेते, और हाईएस्ट रेट आपके इस वाले रिएक्शन का होता है, रिएक्शन एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है. दैट्स हाउ यू डिटरमिन द रेट. ओके, डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन चेंजेस एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl एसिड इंक्रीजेस. ऑब्वियसली सिंपल है, अगर आप ऊपर टेबल को नहीं भी देखते, सिंपल समझे, थेरी का क्वेश्चन है. हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंक्रीजेस. Obviously when it's going to be more concentrated, the rate will also increases, ठीक है. rate increases as concentration of HCl increases, ठीक है. और अगर आप टेबल को देखते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि देखें आपका रिएक्शन टाइम कम होता जा रहा है, ठीक है. टाइम कम हो रहा है, मतलब अभी मैंने बताया कि सबसे फास्टेस्ट रेट होएगा फर्स्ट रिएक्शन का. क्यों सबसे कम फास्टेस्ट रेट होएगा? बिकॉज देखें आपका डिनोमिनेटर सबसे कम है, मतलब आपका रेट सबसे ज़्यादा होगा. समझ आई?
और इसमें सबसे ज़्यादा आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ जो एसिड है वो 100 है और मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, मतलब कोई डाइल्यूटेड नहीं है ये एसिड, ठीक है। सो टेबल से अगर आप आइडेंटिफाई करें फिर आपको ये वाली चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि जितना कम रिएक्शन टाइम उतना ज़्यादा रेट, और जितना ज़्यादा रिएक्शन टाइम उतना कम रेट, ठीक है। चलें मूविंग ऑन। देयर इज़ नो सूटेबल कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। So just two variables other than the concentration of hydrochloric acid or the mass of calcium carbonate that affect the rate of the reaction. ठीक है, that's a simple theory question. Factors affecting rate of reaction. Two things they've told. They've told us about the concentration, and the second thing they've told us about is the mass of calcium carbonate. Now we have to figure out two more things. ठीक है, simple है, अगर आपको theory आती है तो आपको पता होगा temperature affects the rate, ठीक है। Higher temperature means that particles have more kinetic energy and they collide more frequently, hence more frequency of effective collision. And a higher temperature means more particles have energy equal to or greater than the activation energy, so more effective collisions. So temperature effects. And second thing that they have not mentioned is the surface area. ठीक है, higher surface area means more surfaces exposed for the reactant particles to collide on, hence greater frequency of effective collision. So सरफेस एरिया ऑफ, अब यहाँ पे कौन सा HCl का तो हम सरफेस एरिया की बात कर नहीं सकते बिकॉज वो तो एक लिक्विड स्टेट में है, सो इट्स गोना हैव इक्वल सरफेस एरिया, सो इट्स गोना बी सरफेस एरिया ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो डन विद इट। और एक बात देखना ज़रा कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएक्टेंट था, ठीक है। सो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने से हम प्रोडक्ट को इंक्रीज़ नहीं कर रहे, याद रखना। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने से बस फास्टर हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। डोंट थिंक कि प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, यील्ड इंक्रीज़ नहीं होती। रेट इंक्रीज़ होना और यील्ड इंक्रीज़ होना दो अलग चीज़ होती हैं। यील्ड तब इंक्रीज़ होती है जब हम उसकी अमाउंट को ज़्यादा करते हैं, सरफेस एरिया से सिर्फ वो फास्टर होएगा, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो मूविंग ऑन, नाउ वी हैव एन एक्सपेरिमेंट फॉर 7 marks. Now in the recent papers the experiment comes for 6 marks, ठीक है, तो हम इसको 6 कर देते हैं। Okay, now let's see for the reaction. और हम अपने experiments का हमेशा road map बनाते हैं so that it's easy to go with them. Okay, a student is provided with 3 unlabeled bottles, ठीक है। Okay, you have 3 bottles, random bottles. Okay, this is your first bottle, this is your second bottle, and this is your third bottle. Okay, the student knows that the bottles contain, ठीक है, either they can contain sulfuric acid or aqueous calcium chloride, ठीक है, और aqueous zinc chloride. The student is provided with, अच्छा अब ये chemicals हैं जो student के पास हैं, ठीक है। The student is provided with dilute nitric acid, aqueous barium nitrate, aqueous sodium hydroxide, but no other chemicals or indicators. For each of the 3 unlabeled bottles, describe a test and give the observations to identify the contents of the bottle. ठीक है, you must describe tests that give positive results to identify the contents in each bottle. It must be clear in your answer which solution is identified by each positive result. Chemical equations are not required. ठीक है, अब आई एक्सपेक्ट के ये जो क्वेश्चन है ये सारा आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस पे बेस्ड है। वेट अ सेकंड, हाँ ये पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस है। देखें इन प्रीवियस टाइम्स, अब ये 2021 का पेपर है, आपके पास जो होता था ना वो दोज नोट्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस यू वर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, दिस माइट सीम अ बिट इंटिमिडेटिंग टू सम पीपल बाय रीडिंग दीज, बट सिंपल आपने सिर्फ रोड मैप बनाना है और एक एक करके टेस्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। लेट्स ब्रेक डाउन। हमारे पास जो 3 बॉटल्स हैं, ठीक है, एक में एसिड है, एक में कैल्शियम क्लोराइड है और एक में जिंक क्लोराइड है। देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एसिड के लिए क्या टेस्ट है। एसिड में अगर कार्बोनेट डालें तो जो एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, बट हमारे पास कोई कार्बोनेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एसिड देखते हैं कौन सी टाइप के, हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या सल्फेट से कोई ऐसा सॉल्ट बनता है जो इनसॉल्युबल हो जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें? हाँ बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर हम अपना बेरियम सल्फेट बना लें BaSO4, तो बेरियम सल्फेट तो इनसॉल्युबल होता है,
तो बेरियम सल्फेट के मेरे पास आ जाएंगे वाइट प्रेसिपिटेट्स, वाइट पीपीटी। जबकि अगर हम इन दो केमिकल्स में कोई भी बेरियम का सॉल्ट डालेंगे तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। बेरियम क्लोराइड इनसॉल्युबल नहीं होता, सिर्फ लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है, तो ठीक है, आइडेंटिफाई हो जाएगा। और अगर हम जिंक में डालें तो अगेन जिंक क्लोराइड में बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल होएगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे बेरियम सल्फेट के। क्या हमारे पास कोई बेरियम का कॉम्पाउंड है इधर? हाँ है, एक्वस बेरियम नाइट्रेट है, और एक्वस बेरियम नाइट्रेट तो सॉल्युबल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना बेरियम नाइट्रेट तीनों केमिकल्स में डाल देंगे, ठीक है, तीनों केमिकल्स में डाल देंगे। और क्या होगा, क्योंकि हमारा बेरियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, वो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना देगा, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉटल में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे फॉर बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। यू गोना टेक अ स्मॉल सैम्पल ऑफ ऑल थ्री chemicals in 3 test tubes, and in each test tube you're going to add barium nitrate। और जिस टेस्ट ट्यूब में आपके वाइट प्रेसिपिटेट्स बने बेरियम सल्फेट के, मतलब उस टेस्ट ट्यूब में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सो लेट्स राइट ऑन वन बॉटल दैट इट इज़ H2SO4। अच्छा, दे हैव सेट के कोई केमिकल इक्वेशंस नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखें, बेरियम नाइट्रेट NO3 2 क्यों आया? बिकॉज बेरियम के ऊपर 2+ होता है, सो दैट्स वाई। प्लस आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, दैट्स गोना बी अ सॉलिड। प्लस आपके पास क्या बच क्या रहा है, H2 और NO3, सो इट्स गोना बी HNO3 और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू गोना गेट। सो ये आपके पास आ जाएंगे इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स, बिकॉज बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, तो इसके आ जाएंगे वाइट पीपीटी। ओके, हमें एक का पता चल गया। अब अगले पे आ जाओ। अब अगले में हमारे पास 2 सॉल्ट्स हैं और दोनों हैं क्लोराइड्स। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब अगर हम क्लोराइड का टेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम क्लोराइड का टेस्ट करते हैं तो प्रॉब्लम है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्लोराइड के टेस्ट से कि कौन सा जिंक क्लोराइड और कौन सा कैल्शियम क्लोराइड है। ओके, इट्स फाइन, failures are part of the journey. Let's look at the other thing. We have calcium and zinc. Oh, that's a good thing. Calcium और zinc का तो हम easily टेस्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, क्योंकि अगर हम कैल्शियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे which are going to be insoluble in excess। क्योंकि अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छे से आता है, अगर नहीं भी आता इट्स फाइन, एंड पे टेबल होएगा। Calcium के precipitates are insoluble in excess, but zinc precipitates are soluble in excess of NaOH। तो यहाँ पे हमारे पास NaOH है, हम दोनों में डालेंगे, जिसमें insoluble white precipitates बनेंगे, मतलब वो कैल्शियम क्लोराइड है, और जिसमें soluble precipitates होंगे वो जिंक क्लोराइड है। So that's how you identify। तो अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक हमारे पास जिंक क्लोराइड है और साथ हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल वाला कैल्शियम और सॉल्युबल वाला जिंक। सो दैट्स हाउ वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल केमिकल्स बाय यूजिंग दिस। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, अभी जो हमने एक चीज़ नहीं यूज़ की उसका भी यूज़ है, दिस नाइट्रिक एसिड थिंग, ठीक है। इस नाइट्रिक एसिड को हम यूज़ करेंगे टू फर्स्ट एसिडिफाई, और दिस एसिड में हम डालते हैं क्योंकि अगर हमें सल्फेट्स का टेस्ट आता हो, सो इन सल्फेट टेस्ट फर्स्ट वी एसिडिफाई विद dilute nitric acid and then we add barium nitrate to get precipitates of barium sulfate। अच्छा, तो पहले इस नाइट्रिक एसिड से एसिडिफाई भी कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स गुड। ये हम क्यों डालते हैं? क्योंकि देखें बेरियम कार्बोनेट के भी इंसॉल्युबल होते हैं, तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास गलती से बेरियम कार्बोनेट के ना बन जाएं, हम नाइट्रिक एसिड डाल के सारे कार्बोनेट्स को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई पहले हम एसिडिफाई करेंगे नाइट्रिक एसिड से और फिर हम डालेंगे बेरियम नाइट्रेट। सो वी आर डन विद आइडेंटिफाइंग द 3 केमिकल्स बाय यूजिंग द केमिकल्स वी वर गिवन विद। मूविंग ऑन। ओके, आई गेस दिस इज़ अ मोल्स क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। A student determines the percentage by mass of iron in the sample of impure iron, ठीक है,
So the main aim of this titration which we are going to be performing is to identify the percentage by mass of iron in a sample of impure iron. The student measures the mass of an empty beaker. ठीक है, the student adds a sample of impure iron to the beaker. ठीक है, and then measures the mass of the beaker and the impure iron. ठीक है, calculate the mass of the impure iron used in the experiment. ठीक है, अब ये किसका mass हम calculate कर रहे हैं? टोटल हमारे पास जो mass है, total mass of the impure iron. ठीक है, सिंपल है. mass of the beaker को अगर हम माइनस कर दें mass of the beaker प्लस impure iron से, तो हमारे पास आ जाएगा. सो 38.31 minus 36.53. So it's 38.31 minus 36.53. That's going to be 1.78. ठीक है, so it's 1.78 grams. Okay, and excess of dilute sulfuric acid is added to the beaker containing impure iron. ठीक है, सिंपल है. अब देखें, आपने आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हो. अगर आपके पास वो नहीं भी है, यू नो द इक्वेशन, यू शुड नो व्हाट आर यू गोना गेट. यू गोना गेट आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, लकीली यू हैव बीन गिवन विद द इक्वेशन. ठीक है, इट्स आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. बट वन थिंग यू माइट नोटिस ओवर हियर, देखें, हाउ कम देयर इज़ नो सल्फेट ओवर हियर. ठीक है, आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस. इफ़ you have done your theory paper, you should know that you are adding sulfuric acid, but over here you have no sulfate. Why is that so? If any one of you would like to answer in the comments. The thing over here is that this right here is an ionic equation, and in an ionic equation you cut out the spectator ions. To get the ions which are soluble in both sides, they are basically cut down. तो यहाँ पे सल्फेट का जो आयन था वो स्पेक्टेटर आयन था, तो वो दोनों साइड पे कट हो गया क्योंकि एक आयनिक इक्वेशन है, दैट्स वाई. ठीक है, हाइड्रोजन गैस is produced in the reaction. Give a test and observation to identify hydrogen gas. अच्छा, ये आप नीचे से सिंपल कॉपी कर लेंगे. Burning splint and extinguishes with a pop sound. Just copy down from the table below as it is. ठीक है, even if you know, it's good if you just copy from the table. ठीक है. The impurities in the impure iron do not react or dissolve in dilute sulfuric acid. अच्छा, अब सिंपल है कि जो आयरन है वो रिएक्ट करेगा, बट उसकी जो impurities हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगी. The impurities are separated from aqueous solution by filtration. ठीक है, फिल्ट्रेशन पे फिल्टर पेपर पे impurities आ जाएंगी और soluble पार्ट नीचे आ जाएगा. फिल्टर पेपर impurities conical flask filtrate containing Fe2+ ions. ठीक है, suggest how the student make sure that no Fe2+ remains on the filter paper. अच्छा, अब हो क्या रहा है, देखिए, यहाँ पे आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे नीचे आपका फिल्ट्रेट आ रहा है. ठीक है, फिल्ट्रेट में आपके पास हैं Fe2+ आइंस. अब देखें, दैट्स वेरी नॉर्मल और पॉसिबल कि कुछ Fe2+ आइंस यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर और इस इम्प्योरिटीज़ के ऊपर रह जाएं. ठीक है, सो सिंपल वे इज़ कि आप क्या करेंगे, आप ऊपर से सिंपल डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे इस पूरे फिल्टर पेपर के ऊपर, और उससे क्या होगा, जितने भी Fe2+ साइंस हैं वो यहाँ वाटर के साथ नीचे आ जाएंगे. ठीक है, बट वाटर इज़ नॉट गोना अफेक्ट योर फिल्ट्रेट बिकॉज फिल्ट्रेट में तो पहले ही वाटर है. ठीक है, फिल्ट्रेट में पहले ही वाटर है. देखें, जब आप रिएक्शन करते हैं तो वाटर इज़ नेवर अ प्रॉब्लम. ठीक है, वाटर को आप इजीली इवेपोरेट करा देते हैं. सो फिल्ट्रेट में आप सिंपल वाटर यहाँ पे डालें ऊपर से और यहाँ से आपके सारे Fe2+ नीचे आ जाएंगे. सो इट्स गोना बी wash the filter paper with distilled water. So that's gonna wash out your, but it's important that you use distilled water. Tap water में impurities होती हैं और ions होते हैं, so that might contaminate your Fe2+. Moving on, the filtrate is transferred from the conical flask into a volumetric flask. अच्छा, volumetric flask is like a very big kind of a flask, something like this. I guess something a very big kind of a flask. ठीक है, कुछ ऐसा होता है volumetric flask. ठीक है, suggest how the student should make sure that all the filtrate is transferred from the conical flask into the volumetric flask. अच्छा, अब इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास एक बोल है फॉर इंस्टेंस, और आप उससे फॉर एग्जांपल you have made some kind of जाम-ए-शीरी. ठीक है, I guess रूह अफ़ज़ा और जाम-ए-शीरी kind of thing. ठीक है, which we make in Ramadan. ठीक है,
इफ़ यू हैव दैट थिंग और आप चाहते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ जाम शरी इज़ लेफ्ट इन योर जग, ठीक है, आप उसे एक जग से दूसरे जग में ट्रांसफ़र करें, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपका जो जाम शरी वाला जग है आप उसमें पानी डालेंगे, यू गोना काइंड ऑफ डिज़ोल्व इट, और फिर आप उसे अपने दूसरे जग में डाल देंगे ताकि उस जग में कोई जाम शरी ना रहे, ठीक है. सो दैट्स सिंपल. बट इज़ वाटर गोना अफेक्ट योर जाम शरी? नहीं, इट्स नॉट गोना अफेक्ट, ठीक है, वो तो पहले ही उसमें है ना, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका एक ड्रॉप भी जाम शरी का दूसरे जग में ना रहे, यू कैन ऐड वाटर टू द फर्स्ट जग, काइंड ऑफ डिज़ोल्व इट एंड देन पुट इट इन द अदर जग. तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप वॉश द कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर, wash the conical flask with water and transfer the washings into the volumetric flask, ठीक है. जो भी washings हैं आप उन्हें volumetric flask में डाल दें क्योंकि इस washings में कुछ Fe2+ साइंस होंगे, ठीक है. With water and transfer the washings in volumetric flask, ठीक है. Moving on. The solution in the volumetric flask is made up to this, ठीक है, with water. Water तो आपने पहले ही डालना था, ठीक है. This is solution P. The student transfers 25 cm³ of P into a clean conical flask, ठीक है. Solution P क्या है? Solution P आपका 500 cm³ Fe2+ है with water, ठीक है. The student transfers this in इसमें से अब इतना वॉल्यूम ले लिया है और P का कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया. नेम द पीस ऑफ apparatus used to transfer 25 cm³ of P in the conical flask. फिक्स्ड वॉल्यूम जब भी आपने ट्रांसफ़र करना होता है ना, जैसे फॉर इफ़ आई से आई नीड टू ट्रांसफ़र एग्जैक्टली 50.0 cm³ आई यूज़ अ पिपेट, ठीक है. अगर मुझे एग्जैक्टली 20.0 cm³ करना है, सो टू ट्रांसफ़र फिक्स्ड वॉल्यूम्स यू आर गोना यूज़ अ पिपेट, ठीक है. ओके, सोल्यूशन Q. अब देख लें सोल्यूशन Q क्या है, बिकॉज एग्जामिनर इज़ लेटर ऑन गोना यूज़ द वर्ड Q अगैन एंड अगैन. सो सोल्यूशन Q इज़ 0.0100 मोल per dm³ ऑफ पोटाशियम मैंगनेट, ठीक है, VII. द स्टूडेंट वॉशेज आउट अ ब्यूरेट विद डिस्टिल्ड वाटर, वॉशेज आउट द ब्यूरेट विद अ सोल्यूशन, ठीक है. पहले उसने डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया, फिर एक सोल्यूशन से वॉश किया, और वो सोल्यूशन क्या होएगा, वो सोल्यूशन Q ही होएगा. ब्यूरेट को हमेशा आप उसी चीज़ से वॉश करते हो, पहले आप ब्यूरेट को वाटर से वॉश करते हो, फिर उसी चीज़ से वॉश करते हो जो आपने ब्यूरेट में डालनी है, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर यू वॉश द ब्यूरेट विद एग्जैक्टली द सेम थिंग यू हैव टू पुट इनटू द ब्यूरेट. ओके, फिल्स द ब्यूरेट विद Q, ठीक है, एड्स Q फ्रॉम द ब्यूरेट, ठीक है. Q क्या है, फिर ब्यूरेट को KMnO4 से फिल कर देता है और फिर KMnO4 को ब्यूरेट से कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं until end point. Identify the solution used to wash out the burette before it is filled with Q. Obviously, whatever you are filling it in the burette, you wash the burette with the same thing. So it's going to be Q. और अगर Q नहीं लिखना तो आप लिखेंगे 0.0100 मोल per dm³ ऑफ पोटाशियम मैंगनेट, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. खाली पोटाशियम मैंगनेट लिखेंगे तो गलत बात है, बिकॉज उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज होएगी. वो एग्जैक्टली उसी कॉन्सेंट्रेशन से वॉश करेगा बिकॉज उसी कॉन्सेंट्रेशन को उसने उसमें फिल करना है, ठीक है. सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट. यू कैन राइट इनसाइड द ब्रैकेट्स 0.0100 मोल per dm³ ऑफ KMnO4, ठीक है. Okay, moving on. The student does 3 diagrams, ठीक है. The diagram shows part of the burette with the liquid levels at the beginning and at the end, ठीक है. सिंपल है, आपको ये रिकॉर्ड करना है in the table below. This is the table. Use the diagram to complete. हमेशा याद रखना burette को ऊपर से रीड करना है, नीचे से रीड नहीं करना है, ठीक है. Some people often tend to do this error. वो burette को नीचे से रीड करते हैं. For instance, ये रीडिंग है तो उसे रीड करेंगे 24.1, 24.2. That's wrong. burette को हमेशा ऊपर से पढ़ना है, ठीक है. So the first reading is I guess 0.0. हमेशा 1 decimal place पे लिखना है. अगली रीडिंग है 23.5678. Okay, 23.8. Next is 10.1234.
10.4. The next one's 34.1, 2, 3, 4, 5, 6. 34.6. Okay, the next one's 12.1, 2, 3. So 12.3, and the next one's 36.1. So it's 36.1. अब आपने क्या करना है, अपने सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा. So that's going to be 23.8. 34.6 minus 10.4. 34.6 minus 10.4, that's going to give you 24.2. 24.2. The next one's 36.1 minus 12.3. 36.1 minus 12.3, that's going to give you 23.8. 23.8. Now best titration results. हमेशा याद रखना, जब भी आपके दो titration results exactly same आ जाए ना, for example this one and this one, so these are going to be your best burette readings. ठीक है, best titration results वो होते हैं जिनमें maximum आपका 0.2 dm कह रही हूँ cm cube का difference होए. ठीक है, so these are also called your concordant results. concordant results वो होते हैं जिनमें maximum 0.2 cm cube का difference है. और ये जो आपका volume use होता है for the titration, this is also called titer. ठीक है, so you know, even if you find this titer word, don't get confused, it's the volume of your burette thing, whatever it is, that's called the titer. तो इसमें ये और ये same आ गए तो हम ये use करेंगे. और take the best titration results, use the ticked values to calculate the average. अब 23.8 और 23.8 का average obviously 23.8 ही होएगा. You don't even need to calculate it. अच्छा, solution Q is this. We are told by this, हमें ये क्या दिया हुआ है, this is the concentration. Okay, calculate the number of moles of potassium manganate in the average volume of Q used in the titration. Simple, moles equal to concentration times your volume. ठीक है, moles equal to concentration कितना है, ये concentration है 0.0100, और volume कितना है, ये अभी हमने calculate किया average volume. अगर नहीं भी है तो they have given us a hint कि average volume में calculate करना है, so it's 23.8. और क्योंकि ये cm cube में है, हमारा जो concentration है वो dm cube में है, और moles हमेशा dm cube से निकलेंगे, तो ये होएगा divided by 1000. So 23.8 multiplied by 0.01 divided by 1000 multiplied by 0.0100 divided by 1000, and that's going to give you 0.000238. 0.000238 moles. 1 mole of KMnO4 reacts with 5 moles of Fe2+. Okay, that's valuable. इससे हम Fe2+ के भी moles निकाल सकते हैं. इसका 1 मोल और इसके 5 moles. ठीक है, इससे जल्दी से रेशो बना लेते हैं. KMnO4 रेशो Fe2+. ठीक है, 1 मोल इसका रिएक्ट करता है 5 moles ऑफ Fe2+ से. ठीक है, अब हमारे पास ये किसके मोल्स हैं, ये हैं KMnO4 के. तो अगर KMnO4 के 0.000238 मोल्स हैं तो Fe2+ के कितने होंगे, x मोल्स. और इससे हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो हमारे पास Fe2+ के मोल्स आ जाएंगे. और ये जो लाइन है, this line is simply to confuse you guys. Calculate the number of moles of Fe2+ in 25 cm cube. इस वॉल्यूम का आप कुछ तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ना हो. कॉन्सेंट्रेशन तो आपके पास है ही नहीं, सो इसीलिए आपको ये रेशो यूज़ करनी थी. ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय 5 and that's going to give you 0.00119. 0.00119. Done. Calculate the number of moles of Fe2+ in 500 cm cube. अब देखें 25 cm cube में, ये 25 में कितने मोल्स आ रहे हैं, 0.00119. तो 500 में कितने आएंगे, x amount of moles. ठीक है, सिंपल रेशो यूज़ करें
और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करें 500 से और फिर डिवाइड करें 25 से, मल्टीप्लाइड बाय 500 divided by 25, 0.0238. So x equals to 0.0238. Okay, calculate the mass of iron in 500 cm cube. हमारे पास moles तो आ गए 500 में. So mass equals to your moles time your mr. ठीक है, mr उन्होंने हमें as a gift they have given us the mr as well. So moles हमारे पास हैं 0.0238. 0.0238 multiplied by mr is 56. So times 56, and that's going to give me 1.3328. So 1.3328. You can write it to 2 decimal places, 1.33 as well. That's completely fine. Acha, use your answer to A and K to calculate the percentage by mass of iron in the impure iron. अच्छा, परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन इम्प्योर आयरन, मतलब ऊपर होगा हमारे पास आयरन का मास, नीचे होएगा इम्प्योर आयरन का मास, इम्प्योर आयरन टाइम 100%. अब हमें आंसर एक हेल्प जो उन्होंने कर दिया वो का ए और के को यूज़ करना है. सो के का आंसर हमारे पास ये है. लेट्स गो बैक, फिगर आउट द आंसर फॉर ए. दिस राइट है 1.78 हमारे पास टोटल इम्प्योर आयरन का मास था. ठीक है, टोटल इम्प्योर आयरन का मास हमारे पास ये आ रहा था. सो लेट्स नाउ गो बैक. इम्प्योर आयरन का आ रहा था 1.78 अपॉन जो आयरन का आ रहा है, ये आयरन का मास है. देखें, मास ऑफ आयरन जो था ये 500 cm क्यूब हमारे पास इनिशियली टोटल वॉल्यूम था, तो वो आ रहा है 1.3328 टाइम्स 100%. सो लेट्स डू इट. Divided by 1.78 times 100. So that's 74.876. 74.876. 1 decimal place पे आप इसको लिख सकते हैं 74.9%. So that's 74.9%. I hope that's clear. Moving on to the next question, which says solid R contains 2 cations and 1 anion. Okay. 2 cations we're looking for, and on quantity 1 anion. Complete the table. Name any gases that are formed in the test. Okay. R dissolved in water. The solution is divided into 3 portions for the test. 3 portions में से divide किया ताकि 3 different tests हो सकें. A colored solution forms. A colored solution tells us that it contains a transition metal ions. ठीक है, don't say transition metal. You always say transition metal ions. So R contains, क्योंकि colored solution हमेशा transition metals के बनते हैं. R contains transition metal ions. Okay. To the portion of the solution from A, aqueous ammonia is added until the change is seen. R contains Cr3+ or Fe2+ ions. ठीक है. So that means white precipitate, and not white, a green precipitate forms. ये जो है ना, ये सारे marks free के होते हैं, because I guess these 9 marks are for free because you have a table below. उस टेबल से आपने exactly copy करना है. ठीक है, this is no brainer. आपने simple table से देखना है, इन दोनों के टेस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कॉपी कर देनी है. ठीक है. सो ग्रीन PPT फॉर्म्ड. ठीक है. अब अगर तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे. R contains Cr3+ Fe2+ ions. An excess of aqueous ammonia is added to the mixture from Bi. Insoluble, दोनों के insoluble होते हैं excess ammonia में, insoluble in excess, green PPT. ठीक है. R contains, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला होगा. ये सारे आपने नीचे से बस कॉपी करने हैं. ठीक है. ग्रीन PPT. Cr3+ का आयन है. 3+ आयन्स का मतलब है कि ग्रीन PPT dissolved. So green PPT dissolves. Okay. To the mixture, Ci is warmed and a gas formed is tested with damp red litmus paper. अच्छा, अब look over here. The mixture from Ci. What is Ci? Ci2, ये जो भी 2 है, यहाँ पे कौन सा मिक्सचर है? Excess of sodium hydroxide. मतलब sodium hydroxide on warming a gas is given off.
और कंक्लूजन है अमोनियम आयंस. So what gas is given off? Ammonia gas. And is tested with red litmus paper. Red litmus turns blue. ये आपने बस नीचे से कॉपी करना है. Litmus paper turns blue. ठीक है. अगला है white precipitate forms. It contains chloride ions. Simple यहाँ पे टेस्ट लिखना है. Acidify with dilute nitric acid and then add silver nitrate and then your white precipitates are gonna be formed. ठीक है, सिंपल है. सिल्वर क्लोराइड के white precipitate बनेंगे. यहाँ पे Ag प्लस होएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव होगा और यहाँ पे बनेगा AgCl सॉलिड. ये भी एक्वस होएगा, ये भी एक्वस होएगा. दैट्स द आयनिक इक्वेशन. और ये white precipitates आपके पास क्लोराइड के होंगे. अगर येलो हैं तो आयोडाइड के होते हैं, क्रीम हो तो ब्रोमाइड के होते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. दिस इज़ आई गेस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. ठीक है, let's see what this is about. Asha, the reaction between aqueous lead 2 nitrate. Why this 2 over here? Because lead is Pb2+. ठीक है, these are small things but they can cost you a lot. And aqueous potassium iodide produces a precipitate of lead 2 iodide. ठीक है, the student has 2 solutions. अब simple है, precipitation reaction हो रहा है और 2 सॉल्यूशंस हैं आपके पास पोटाशियम आयोडाइड के और लेड नाइट्रेट के. अब आपको पता है कि लेड आयोडाइड इज़ इनसॉल्युबल. ठीक है, लेड का आयोडाइड और सिल्वर का आयोडाइड. ठीक है, लेड और सिल्वर के हैलाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं. सो सिंपल इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है और आप 2 सॉल्युबल सॉल्ट यूज़ करें. ये वाला सॉल्युबल और ये वाले सॉल्युबल से ये वाला इनसॉल्युबल बन रहा है. ठीक है, अब आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं. अब आगे जो एग्जामिनर है वो उसको जी और एच से रेफ़र करेगा. जी जो है वो इट्स 1 मोल पर dm³ ऑफ KI एंड सॉल्यूशन एच इज़ बेसिकली योर लेड नाइट्रेट ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता. ओके, द स्टूडेंट डिटर्मिन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच. नाउ द मिशन इज़ टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन. द स्टूडेंट एड्स 5 cm³ of H to 10 cm³ of G in a test tube. Okay, now you're given with the volumes. आपके पास इतना H है और इतना G है. Removes the precipitate by filtration. ठीक है, जो आपके पास lead iodide बने उसको आपने remove कर लिया. By the way, what's going to be the color of lead iodide? It's going to be yellow. ठीक है, don't forget it. Lead iodide is going to be yellow. और अगर ये lead bromide होता Pr2 तो ये it's going to be cream. ठीक है, ये इनके कलर्स होते हैं. ओके, measures the mass of the pure dry precipitate. ठीक है, repeats with different volumes of H. We are given with a table. We have experiment. Then how much G are we taking? What's G? G is basically your KI. ठीक है, और फिर आप कितना H ले रहे हैं. H क्या है आपका? H is basically your lead nitrate. और फिर आपका कितना mass हो रहा है precipitate का. ठीक है, the student uses a burette to measure the volume of H. State why the student uses a burette instead of a measuring cylinder. Simple, burette is more accurate and precise. ठीक है, measuring cylinder अक्सर जो है it's not used in titrations because it's not very accurate. और titrations में हमें fixed accurate volume चाहिए होता है. So burette is more precise and accurate. Okay, suggest why the student does not repeat the experiment with more than 30 cm³ of H. Acha, moving to this part, you can see that what's happening over here. Try to identify. हमने 5 cm³ अपना H डाला तो हमारे पास 0.64 जो है वो हमारा प्रेसिपिटेट बना. ठीक है, अगले में हमने अपने H को 5 cm³ से इंक्रीज़ करके 10 cm³ पे कर दिया और जो हमारा प्रेसिपिटेट बना वो भी इंक्रीज़ हो गया और डबल हो गया ऑलमोस्ट और 1.28 हो गया. अगले में हमने 5 और इंक्रीज़ कर दिया अपना H 15 कर दिया और हमारा प्रेसिपिटेट भी और इंक्रीज़ होके 1.92 हो गया. फिर क्या हुआ? दिस शोज़ कि अभी जो है ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है. ये क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट है? क्योंकि ये तो फिक्स्ड है. ठीक है, और इसको इंक्रीज़ करने से हमारा
प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, और जिसको इंक्रीज़ करने से प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अगले में हमने डिसाइड किया कि हम 5 और इंक्रीज़ करेंगे, 5 और इंक्रीज़ करेंगे एच को CM³ से, और हमारा प्रेसिपिटेट जो है मास वो भी इंक्रीज़ हो गया। फिर अगले में हमने 5 और इंक्रीज़ किया, हम 20 से 25 पे चले गए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रेसिपिटेट का मास है वो उतना ही रहा। इससे पता चलता है कि अब ये एक्सेस में हो गया है, वॉल्यूम ऑफ H इज़ नाउ इन एक्सेस। देखो इसको इंक्रीज़ करने से प्रोडक्ट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रह रहा है। इसको तो मैंने 20 से 25 पे कर दिया, बट प्रोडक्ट क्यों नहीं इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि ये जो है ये एक्सेस में आ चुका है, ठीक है। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, तो अब हम इसको जितना भी इंक्रीज़ कर लें हमारा प्रोडक्ट 2.31 से ज़्यादा नहीं बन सकता। ओके, फिर हमने सोचा कि चलो शायद कोई प्रॉब्लम हो, लेट्स इंक्रीज़ H मोर। हमने H को 30 पे इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रोडक्ट है वो फिर भी 2.3 बन रहा, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट हो गया कांस्टेंट, ठीक है, मास ऑफ द प्रोडक्ट और द प्रेसिपिटेट बिकेम कांस्टेंट। अब वो कहते हैं सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट डज नॉट रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद मोर देन 30, बिकॉज द प्रोडक्ट और द मास ऑफ द basically the precipitate becomes constant, it's not increasing। वो जितना मर्जी increase कर दे, it's of no use because the product has become constant। So we're going to say the mass of precipitate becomes constant। कोई फ़ायदा ही नहीं है increase करने का, because like it's the same all the way, ठीक है। plot the results from the table on the grid, ठीक है। draw one straight line through the first 3 points। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ करनी है वो हमें फर्स्ट 3 पॉइंट से करनी है, और जो अगली लाइन ड्रॉ करनी है सेकंड स्ट्रेट लाइन थ्रू द अदर 3 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब 6 पॉइंट्स में से फर्स्ट 3 को एक साथ जोड़ना है और नेक्स्ट 3 को एक साथ। एक्सटेंड बोथ स्ट्रेट लाइन्स अंटिल दे इंटरसेक्ट। ओके, इट्स गुड दैट वी आर गिवन विद ऑल द स्केल्स ऑन द टेबल, वी जस्ट हैव टू प्लॉट इट, ठीक है। मास ऑफ द प्रेसिपिटेट अगेंस्ट आवर वॉल्यूम ऑफ H, ठीक है। सबसे पहले 5 पे हमारे पास बन रहा है 0.64, सो 5 पे हमारे पास है ये होगा 0.75। अच्छा, अगर आपको इसका वो फाइंड करना है कि एक ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखें ये टोटल जो है ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल, ठीक है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपने 0.5 को डिवाइड कर देना है नंबर और जंप इन बॉक्सेस डिवाइडेड बाय जंप इन वैल्यू। तो जंप इन बॉक्सेस कितने हैं? 10। ये 5 बॉक्सेस और ये 5 बॉक्सेस, और जंप इन वैल्यू कितना है? 0.5। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 10, 0.5 डिवाइडेड बाय 10, 0.05। तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0.05, मतलब ये होगा 0.55, ये होगा 0.60, ये होगा 0.65, समझ आई? और फिर होगा 0.70, फिर ये 0. आप इसको समझ लें नंबर्स हैं, 65, 70, 75, फिर ये होगा 80, 85, 90, 95 और ये होगा 100, ठीक है। आप इस डेसिमल को इग्नोर कर दें अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। सिंपल 100 समझे, 50 से आप 100 पे जा रहे हैं, ठीक है। इसको 50 समझ लें, इसको 100 समझ लें। तो 64 कहाँ पे आएगा? इस वाली लाइन पे आएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। ये 65 है तो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 64, ठीक है। अगले पे आ जाएं, विच इज़ 10 पे है 1.28, सो ऑन 10 इट्स दिस इज़ 1.28 चाहिए, मतलब 28, 128। सो ये 25 होगा, ये 30 होगा, तो 28 कुछ इधर होगा, ठीक है। अगला है हमारा 15 पे 192। देखें डेसिमल्स अगर कंफ्यूज करते हैं तो उनको इग्नोर करते हैं। 15 पे 192, ये 150 है, ये 175 है, ये 180 होएगा, ये 85, ये 90, 92 कुछ इधर होगा, ठीक है। सो और आगे तीनों कांस्टेंट आएंगे, 20, 25 और 30 तीनों पे 2.31। सो 20 पे 2.31, ये 20, ये 225, 230, 31 इससे थोड़ा सा ऊपर होएगा, और इस पे भी होएगा सेम, और इस पे भी होएगा सेम, ठीक है। आई गेस वी आर डन।
जो लास्ट 3 लाइंस हैं उनको जो है हमने 3 डॉट्स को एक लाइन से जॉइन करना है, समथिंग लाइक दिस। और जो फर्स्ट थी, अच्छा एक्स्ट्रापोलेशन ना करना, मतलब नो नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम ज़ीरो अगर उन्होंने कहा नहीं। लेट्स सी उन्होंने कहा है हैव दे आस्क्ड अस टू जॉइन, नहीं उन्होंने नहीं कहा कि ज़ीरो से स्टार्ट करें, सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट and here we go. Done. Determine the mass of the precipitate formed when 12 cm cube of H is added to 10 cm cube of G. अच्छा G तो हमारे पास टोटली फिक्स्ड था, अब हमें 12 cm cube पे फाइंड करना है। सिंपल ग्राफ पे जाएं, H पे 12 कहाँ पे आएगा, देखें ये 10 है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, सो 10, 11 यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो यहाँ से एक लेट्स एक्सटेंड लाइन फ्रॉम हेयर, ये हमारे पास है 12, और यहाँ से लेट्स फाइंड आउट। ओके सो व्हाट्स दिस, ये हमारा 55 था, 155, और ये 1.50 था, तो 55 और 50 के दरमियान क्या आता है, 152.5, सो इट्स गोना बी 1.525, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट हो गया 1.525, सो इट्स 1.525। एग्जामिनर इज़ नॉट गोना बी हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इन हिज माइंड, वो आपके ग्राफ से रीड करेगा, ठीक है। सो अपने ग्राफ पे एक्यूरेट वैल्यू को जो भी आ रही है जस्ट प्लॉट इट। अच्छा, डिटर्मिन द मिनिमम वैल्यू or volume of H added to 10 cm cube of G to make exactly 0.80 grams of precipitate. अच्छा 0.80 grams चाहिए, 150, 55, 60, 65, 70, 75, 80, ये हो गई 1.80, नहीं 1.80 नहीं 0.8 था, ओके सॉरी 0.80 था, सो इट्स गोना बी 75 हो गया, ये 80 हो गया, so exactly this, and that's 5, that's 6, that's 6.5, so that's 6.5 cm cube of H, ठीक है। Moving on, use your graph to determine the minimum volume of H that reacts with all of the Ki in 10 cm cube of G। अच्छा, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ H दैट रिएक्ट्स विद ऑल ऑफ Ki। अच्छा, अब इसको आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम दिस थिंग, इससे आपको इंटरसेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। देखें यहाँ पे, यहाँ से आगे जो है ना, ये एक्सेस में आ रहा है, ठीक है, मतलब ऑल ऑफ जो हमारा H है ना वो रिएक्ट नहीं कर रहा। आफ्टर 15 दिस थिंग इज़ इन एक्सेस, लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्टली 15 के बाद इतने नंबर्स हैं, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, इनमें से कौन सी वैल्यू पे हमारा H एक्सेस में आया था, ठीक है। देखें ये तो एक्सेस में है, पता चल रहा है कि एक्सेस में है, बट कब एक्सेस में आया, 16 पे आ गया, 20 पे तो पक्का एक्सेस में है ना, बट 16 पे, 17 पे, 18 पे, 19 पे कौन सी वैल्यू पे वो एक्सेस में गया, इसको फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना आप ग्राफ पे इंटरसेक्शन देखते हो, ठीक है। ये जिस वैल्यू पे एग्जैक्टली ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है जिस पे वो एक्सेस में आ गया था, ठीक है, मतलब वो उतना वॉल्यूम रिएक्ट किया, उसके बाद नहीं रिएक्ट किया। सो लेट्स फाइंड इट आउट फ्रॉम द ग्राफ व्हाटएवर दिस वैल्यू इज़, ये 15, 16, 17, 18, सो मतलब 18.0 पे वो एक्सेस में हो गया था, so that's gonna be 18.0 cm cube, ठीक है। अच्छा, G is 1 mole per dm cube of Ki. The equation for the reaction between lead nitrate and Ki is shown. Okay, the examiner is kind enough कि उसने हमें फिर से बताया कि ये concentration है, equation दी, use your answer to EI, मतलब ये आंसर हमने यूज़ करना है, and the equation to calculate the concentration of lead nitrate in H. Okay, 3 marks.
Let's get our hands on this and do it. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोल्स, ठीक है. सबसे पहले फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ जी. एक सेकेंड, यूज़ योर ग्राफ टू डिटरमिन द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एच. वॉल्यूम ऑफ एच तो हमारे पास आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है? यूज़ योर आंसर. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट बेसिकली आपका एच ही है, तो एच की आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम तो एच का मेरे पास है जो कि है 18.0. मोल्स एच के मेरे पास नहीं है, तो चलें एच के मोल्स फाइंड करते हैं. एच को हम बेसिकली बोलेंगे आपसे लेड नाइट्रेट, ठीक है, फिर वो कंफ्यूज होता है इसलिए. लेकिन जी तो हमारे पास है ना, जी के तो मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं ना. सो लेट्स जी के करते हैं, मतलब के आई के मोल्स फाइंड करते हैं. सो के आई के मोल्स ऑफ जी लिखते हैं. मोल्स इक्वल्स टू योर कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन भी एग्जामिनर ने दी 1.0 टाइम्स योर वॉल्यूम. देखें जी का वॉल्यूम कांस्टेंट था थ्रू आउट जो कि था 10 पे. देखें सो इट्स 10. सो 1 टाइम्स 10 बट डिवाइड होगा किससे? 1000 से. क्यों? क्योंकि ये cm³ में है, हमें dm³ में चाहिए होता है. सो इट्स 1 टाइम्स 10 divided by 1000, that's 0.01 moles. So moles of G equals to 0.01. अब अपनी रेशो बनाते हैं. इसके 0.01 मोल्स हैं और ये इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो इसके कितने होंगे? के आई रेशो PbNO3 2. इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं. और अब लेड आयोडाइड के हमारे पास 0.01 है, तो इसके होंगे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 0.01 को डिवाइड कर दें 2 से, आपके पास आएगा 0.005. लेकिन फिर भी टू बी श्योर लेट्स डू इट ऑन द कैलकुलेटर. डिवाइडेड बाय what happened? Okay, divided by 2 and that's going to give you 0.005. अच्छा, तो अब हमारे पास इसके मोल्स आ गए. ये हमारे पास मोल्स आ गए लेड नाइट्रेट के. और अब हमारे पास अपने फार्मूला में वॉल्यूम तो पहले ही था, मोल्स चाहिए थे ना. मोल्स आ गए 0.005. इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, बट वॉल्यूम ये हमारे पास है cm³में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 1000 से. 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो 0.018. सो 0.005 डिवाइडेड बाय 0.018 divided by 0.018 and that's going to give you 0.277, or you can write 0.28 mole per dm³. And we're done with the paper. So thanks for watching and subscribe to the channel, that's going to mean a lot. Bye bye.